when we don't allow Him to refine our hearts, to refine our motives, and we want to sit in 5 minutes. हाँ प्रभु बताओ क्या करें? अच्छा ओके. जहाँ हम अपने दिल को उसके सामने सफाई के लिए, अपने मकसदों उसके सामने सफाई के लिए नहीं लाना चाहते, 5 मिनट बैठ के बोलते हैं प्रभु बताओ क्या करना है. Amen. And let me tell you, if you really want to hear God's voice, और अगर आप सच में उसकी आवाज को सुनना चाहते हो, don't go to Him for answers, go to Him for Him. तो उसके पास जवाब पाने के लिए मत जाओ, उसके पास उसके लिए जाओ. Amen. Amen. He's not Google. वो गूगल नहीं है. He's not search. He didn't say, "The Lord shall be thou search engine." उसने ये नहीं कहा प्रभु आपका सर्च इंजन होगा. Yes, He will give us answers. हाँ वो हमें उत्तर देता है. But go to Him for Him. लेकिन उसके पास उसके लिए जाओ, उसको जानने के लिए. Amen. Amen. So if you're writing it down, write it down. The voice of the Lord is not explained, but is known through intimacy. अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें कि प्रभु की आवाज को समझाया नहीं जाता, उसको जाना जाता है गहरे रिश्ते के द्वारा. Amen. When the more you will spend time with Him, जितना ज्यादा समय आप उसके साथ बिताएंगे, the more you will be able to recognize His voice. And when I say His voice, don't always mean it will always be a voice. उतना आसानी से आप उसकी आवाज को पहचान पाएंगे, और ये ना समझे कि हमेशा वैसे आवाज आएगी. He speaks through different ways. वो अलग अलग तरीकों से बात करता है. You know, sometime during the day when He wants my attention, sometimes I just feel a tangible presence. Sometimes I feel like somebody poured oil on my head, and I instantly know that He is looking for my attention. कई बार दिन में जब प्रभु को मेरा ध्यान अपनी ओर चाहिए होता है, तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे शरीर पर उसकी उपस्थिति है. कई बार मुझे लगता है मेरे सर पे किसी ने तेल उंडेल दिया, और मैं जानता हूँ कि उसको मेरा ध्यान चाहिए. So what do? We become sensitive to the moving of the Spirit. तो हम क्या करते हैं, हम आत्मा जब हमारे आसपास चल रहा हो तो उसके लिए हम संवेदनशील हो जाते हैं. The more sensitive you become, the more it will grow. जितना ज्यादा आप संवेदनशील होते चले जाएंगे, उतना आप बढ़ते चले जाएंगे इसमें. Amen. Amen. So the voice of God is known. प्रभु की आवाज को जाना जाता है. You know, the biggest reason why many people don't hear God's voice is because we are so activity driven. सबसे बड़ा कारण कि क्यों कई लोग प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, वो इसलिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं. Do you know that your mind can be as noisy as your mouth? आप जानते हैं आपका दिमाग उतना ही हल्ले और शोर शराबे से भरा हो सकता है जितना आपका मुंह. You want to know? Sit in a room, don't talk anything, sit in silence for 5 minutes. अगर जानना है, देखना है, तो किसी कमरे में चुप करके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, 5 मिनट के लिए सन्नाटे में बैठ जाओ. Zoom, zam, zim, zoom, zam. Be still and know that I am God. ठहर जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. We will have to develop this tendency to wait on the Lord and be still, do nothing. हमें इस आदत को बनाना है कि हम उसकी उपस्थिति में ठहर जाएं और कुछ ना करें. Amen. Amen. Stillness is the key, but yeah, we'll go there. ठहरे रहना कुंजी You है. know, when a grown child is picked by his mother, जब एक बड़े बच्चे को उसकी माँ उठाती है, I'm sorry, when a grown child is picked by another, एक बड़े थोड़े बड़े बच्चे को जब कोई और उठाता है, the child starts crying. वो बच्चा रोना शुरू करता है. Says, I want to go to my mother. कहता है अपनी मम्मी के पास जाना है. Why? क्यों? Because the child has learned to recognize his mother. क्योंकि उस बच्चे ने अपनी माँ को पहचानना सीख लिया है. But if you do that with a newborn, the new mom is happy. अगर बिल्कुल नया जन्मा बच्चे के साथ आप ऐसे करेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. Jesus said they will not hear the voice of a stranger because they know me. यीशु ने कहा वो एक अनजान की आवाज को नहीं सुनेंगे क्योंकि वो मुझे जानते हैं. Amen. Amen. Think about that. Pharisees were all the time they had memorized the entire Torah. कल्पना करें, फरीसी लोग हमेशा वचन पर मनन करते थे, पूरा तोरा रट लिया था उन्होंने. They were fasting, उपवास कर रहे थे, they were praying, प्रार्थना कर रहे थे, they were giving, दे रहे थे दशमांश, doing everything. सब कुछ कर रहे थे. Still, when the same God came on this earth whom they claimed to worship, जिस
जिस परमेश्वर की वो कहते थे, वो आराधना करते थे, जब वो पृथ्वी पर आ गया they didn't recognize him. तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं। Do we know Jesus? क्या हम यीशु को जानते हैं? If he walks into our room, अगर वो हमारे कमरे में आ जाए, will we know him? क्या हम उसको पहचानेंगे? I will manifest myself to them. मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा, उन पर साबित करूंगा अपने आप को। To live in a deep, intimate relationship with the Lord is possible on this earth. प्रभु के साथ एक गहरे घनिष्ठ रिश्ते में जीना संभव है इस पृथ्वी पर होते हुए। It is not easy, आसान है, because many times that would mean you'll have to say no to your friends who are calling you for a party. क्योंकि कई बार इसका मतलब ये होगा अपने दोस्तों को मना करना जो आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। And I'm not saying that, I'm talking about you being sensitive to that check. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके दिल में वो चेक होता है, जब आपको पता लगता है उसकी दस्तक का, तो उसके लिए आप संवेदनशील हो जाएं। You know, let me say it this way. मैं इस तरह से कहूँगा, We must say no to things sometimes to say yes to Him. कई बार हमें चीजों को मना करना सीखना पड़ेगा ताकि हम प्रभु को हाँ बोल सकें। Sometimes it's costly. कई बार बहुत महंगा पड़ता है। Sometimes it can cost you relationship. कई बार आपको रिश्तों का दाम चुकाना पड़ता है। You know, one time the Lord told me, He said, "My son, I don't have any problem with your yes. Your yes is strong. एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तेरी हाँ बहुत मजबूत है। Whenever I tell you to do something, you do it. जब कभी मैं कुछ करने के लिए कहता हूँ तो करता है, But your no is weak. लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है, And the enemy uses that. और प्रभु उसका फायदा, और दुश्मन उसका फायदा उठाता है। You boldly don't say no where you have to say no. तुम साहस के साथ ना नहीं बोलते जब ना बोलना चाहिए। Can I tell you, your no has to be as strong as your yes. मैं आपको बता दूं, आपकी ना को उतना ही मजबूत होना जरूरी है जितनी आपकी हाँ मजबूत है। अरे चलना यार, अरे तू पीता नहीं है तो क्या हो गया, तो बैठ जा, थोड़ा पैक हम लगा रहे, तो बैठ जा हमारे साथ। If you don't drink, it's okay. Just come with us. We'll drink. You sit with us. Our no is not strong. क्योंकि हमारी ना मजबूत नहीं है। You know, the Lord had to correct me for my no. प्रभु को मुझे भी सही करना पड़ा मेरी ना के लिए। There was a guy who came in the leadership, and Jesus clearly told me, no, don't allow him to come in. एक व्यक्ति था जो कलीसिया के अगुओं में आ गया, और प्रभु ने मुझे साफ कहा था उसके लिए, ना उसको अभी मत आने देना। But I disobeyed him. लेकिन मैंने प्रभु की ना सुनी। I said, man, look at this guy. He's so passionate for the Lord. मैंने कहा, देखो तो सही, इतना जुनून है उसको प्रभु के लिए। We have to develop that inward witness. वो भीतरी गवाही को हमें मजबूत If you करना can develop that, you can never be cheated in life. अगर आपने उस भीतरी गवाह को मजबूत कर लिया, आप कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। And for 2 years, और 2 साल तक the Lord didn't talk to me. प्रभु ने मुझसे कोई बात नहीं की। 2 years. 2 साल Church was happening. कलीसिया चल रही थी, Healings were happening. चंगाइयां हो रही थी, Miracles were happening. चमत्कार हो रहे थे, Everything was awesome. सब कुछ बढ़िया But था, only I knew लेकिन सिर्फ मैं जानता था inside अंदर the flow had stopped. कि वो बहाव रुक गया था। I could quote scriptures. मैं वचन की आयतें बोल I was सकता था, preaching. मैं प्रचार कर रहा था, Fiery message. आग से भरे हुए संदेश। I said, Lord, why have you stopped talking to me? मैंने कहा, प्रभु मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया आपने? We have to come to a place where obeying Him is our greatest desire. हमें उस जगह पर आ जाना है जहाँ पे उसकी आज्ञा, उसकी बातों को मानना हमारी सबसे बड़ी चाहत बन जाए। Amen. I'm telling you before the Lord, if tomorrow He tells me to step out of this pulpit, मैं प्रभु के standing सामने- here would not give me any pleasure, because I know I would be disobeying Him. मैं प्रभु के सामने कह रहा हूँ, अगर मुझसे कहता है कल को कि इस पुलपिट से हट जाओ, तो यहाँ खड़े होकर मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उसके विरोध में जा रहा हूँ। The pleasure is not in what we do.
आनंद उसमें नहीं जो हम करते हैं, The pleasure is in doing what He wants us to do. आनंद वो करने में है जो वो चाहता है हम करें। Amen? So for 2 years, 2 साल तक, until the Lord fully exposed him and that guy was out. जब तक प्रभु ने पूरी तरह से पर्दाफाश ना कर दिया उस व्यक्ति को और वो बाहर ना चला गया। And then when he went out, और जब वो चला गया, I didn't say anything to anyone. मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। That morning God spoke to me. उस सुबह प्रभु ने मुझसे बात He की। said, now get ready उसने कहा आप तैयार for हो what जाओ, I'm about to do. जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए। And people are coming to me in the church. और लोग मेरे पास आने लगे। Nobody knows what has happened किसी को नहीं पता था क्या in the हुआ। background. They said, पर्दे के पीछे क्या हुआ किसी को नहीं पता था। Pastor, the church again feels alive like it was before. उन्होंने कहा पास्टर कलीसिया फिर से वैसी जिंदा लग रही है जैसे पहले हुआ करती थी। One wrong man in your circle can stop you from reaching your destiny. आपके जीवन के घेरे में एक गलत आदमी आपको रोक सकता है अपने जीवन के मकसद को पूरा करने से। Be very careful who are the people you spend your most time with. बहुत ध्यान दें आप अपना समय किस किस के साथ बिताते हैं, कौन लोग हैं जिनके साथ आप Bible ज़्यादा says, समय don't be deceived. An evil company is going to corrupt good character. बाइबल कहती है धोखा ना खाएं, एक बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी, खराब कर देगी। अरे पास्टर, हम तो उनको प्रचार करने के लिए उनके साथ बैठते हैं। ओ पास्टर, आई गो टू प्रीच द गॉस्पेल टू देम। Who are you deceiving? किसको धोखा दे रहे हो? Hallelujah. And then I was like, Lord, what happened? Why didn't you talk to me for 2 years? And He gave me this scripture. Are you ready? और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हुआ, आपने 2 साल से मुझसे बात क्यों नहीं की थी? फिर उसने मुझे वचन दिया। तैयार है? Genesis 13:14. उत्पत्ति 13 उसका 14। And the Lord said to Abraham after Lord had separated from him. जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। God had told Abraham in Genesis chapter 12, God had told him, get out of your country, get out of your family, and get out of your father's house. अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में कहा, अपने देश से, अपने पिता के घर से, अपने लोगों को छोड़कर बाहर निकल। But somehow he disobeyed the Lord and brought his brother's son, Lot. लेकिन उसने प्रभु की बात में अनाज्ञाकारिता की और अपने साथ लूत को ले आया जो उसके भाई का बेटा था। And Lot became a lot of problem for him. और लूत उसके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया। And God waited और परमेश्वर and waited ठहरा रहा, परमेश्वर and रुका waited. रहा, वेट करता And रहा। the day Lot was separated, bam, God spoke to Abraham. और जिस दिन लूत उसको छोड़कर गया परमेश्वर ने उससे बात की। What did God say? क्या कहा परमेश्वर? Lift your eyes now. अपनी आंखों को उठा अब। Why didn't God do that when Lot was with Abraham? परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं कहा जब लूत अब्राहम के साथ था? There can be people in your life who are delaying your call. आपके जीवन में वो लोग हो सकते हैं जो आपके मकसद को धकेल रहे हैं, आगे देर कर रहे हैं उसमें। Be very careful. बहुत ध्यान दें। When I first got saved, जब मैंने पहले उद्धार पाया, are you getting what I'm saying? समझ रहे The हो? desire to obey the Lord चाहत रखें उसकी बात मानने की, is costly, वो महंगा पड़ेगा but it's greatly precious in His sight. लेकिन उसकी नजरों में बहुत कीमती होगा। And the day this guy left, और जिस दिन वो व्यक्ति गया, we didn't see any growth. That is the only time our church was in a building for 3 years. Otherwise, any other building we went, in 1 year we were filled. जब वो व्यक्ति साथ था 2 साल, सिर्फ वही समय था कि हमारी कलीसिया बढ़ी नहीं तो हर बार किसी भी जगह जाते हैं 1 साल में कलीसिया पूरी भर जाती थी। But the day he left, जिस दिन वो गया, God said, be ready now. प्रभु ने कहा तैयार हो जाओ। He's a person. वो एक व्यक्ति है, Treat him like a person. एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करे उसके साथ। Amen? आमीन। Hallelujah. You have to develop this tenderness in your heart towards him. उसके प्रति ये संवेदनशीलता, ये नरमता आपको बनानी पड़ेगी। You know, there are times when you decide, आज Wednesday तो आज फास्ट करेंगे।
But there are times when the plate comes, the plate is in front of you and you sit on the chair. Somehow you feel in your heart, I shouldn't eat. What is that? That's him telling you, leave your food, come aside, spend time with me. कई बार हम निर्णय लेते हैं कि बुधवार है तो हम उपवास करेंगे, लेकिन कई बार जब खाने की प्लेट सामने आती है तो आपका मन नहीं कर रहा होता कि मैं इसको खाऊं इस समय। ये उस समय परमेश्वर दस्तक दे रहा है कि आप अलग हो जाएं। And I'm not saying that I have always fully, I have disobeyed him many times. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा पूरी तरह से उसकी बात मानी है, कई बार मैंने उसकी बात नहीं मानी है। कई बार आपकी बीवी बोलती है, इतनी मेहनत से आलू के पराठे बनाए मैंने। Sometimes your wife says I've made आलू के पराठे। But I pray we'll become sensitive to his nudgings. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जब दस्तक देता है तो हम संवेदनशील हो जाएं उसके लिए। Amen. You know, I had to go to the Send. It's a very big. It's okay if I share some things. I had to go to Brazil, and my visa was done, and the flight was in few days. But something in my heart would not settle. ब्राजील में सेंड हो रहा था, मुझे वहाँ जाना था और फ्लाइट्स हो गई थी, वीजा हो गया था, सब ठीक था, लेकिन मेरे दिल में कुछ ठीक नहीं लग रहा। And it was a very close meeting. We had meeting with Heidi Baker and all these Daniel Colin and all these amazing men of God, and there were only like 10-15 of us. और कुछ 10-15 लोग थे हम जिनकी मीटिंग होनी थी, हाइडी बेकर, डैनियल कोलिंडा, ऐसे प्रभु के अद्भुत लोग। What more can you ask for? All these amazing men and women of God. इससे बढ़िया कोई क्या मांग सकता है? परमेश्वर के इतने अच्छे लोग थे वहाँ। But this, just a check. I didn't tell anyone, but it's like, okay, Lord. लेकिन यहाँ पर एक झंडी सी थी, लाल झंडी सी थी जो आगे जाने नहीं दी। And then the pastor who was taking me, it was very hard. It was very hard for him. और जो पास्टर मुझे लेके जा रहे थे उनके लिए बड़ा ही कठिन था मेरा ना सुनना। So I told him, I said, मैंने उनसे कहा, I feel I shouldn't go. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए। He said, what's the reason? उन्होंने कहा कारण क्या है? I said, I don't know. मैंने कहा मुझे नहीं पता। So are you not well? कहा क्या ठीक नहीं हो क्या? No, I'm all well. मैंने कहा नहीं सब ठीक है। Is finance a problem? पैसे की दिक्कत है? No, finance is not a problem. पैसे की दिक्कत भी नहीं। Man, what are you doing? तो क्या दिक्कत है? क्या कर रहे हो? All these amazing men. इतने अद्भुत लोग आ रहे हैं प्रभु के। This check. लेकिन यहाँ पर So I decided I'll not go. मैंने ठान लिया नहीं जा रहा हूँ। And that Sunday, और उस रविवार I was not preaching. मैं प्रचार नहीं कर रहा था। I told a friend to preach. मैंने एक दोस्त से कहा था कि वो प्रचार करे। And I was sitting there. मैं वहाँ बैठा था। And as he finished his message and he started to minister, और जब उसने संदेश खत्म किया और वो सेवकाई करने लगे, and the Lord told me, get up and go to the stage. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उठो और स्टेज पर जाओ। So I went there, मैं वहाँ गया and bam, I'm now getting names of people. और अब मुझे लोगों के नाम आने लग गए। I'm getting their condition, the word of knowledge. मुझे ज्ञान के वचन के द्वारा लोगों की बीमारियों की परिस्थिति बोलने लगा मैं। Many times, so many things are hidden behind plain obedience. कई बार बहुत सी चीजें छुपी हुई होती हैं साधारण रूप से प्रभु की बात मानने के पीछे। Are you getting what I'm saying? There is always rewards connected to when we obey Him. हमेशा प्रतिफल जुड़े हैं जब हम उसकी बात का पालन करते हैं उनसे। It cannot happen that you are a person who honors the Lord, who honors His voice, and you will be among the ordinary. No, it cannot happen. ये संभव नहीं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु का आदर करते हैं, उसकी आवाज को सुनकर मानते हैं और आप साधारण लोगों के बीच में होंगे। ऐसा नहीं होगा। No, He's going to lift you up. वो आपको उठाएगा। He's going to lift you up. आपके स्तर को As you honor Him in your secret place, जब आप उस गुप्त स्थान में उसका आदर करते हैं, He will lift you up before everyone. तो आपको सबके सामने ऊंचा उठाएगा। And when He decides to lift you up, और जब वो ठान लेता है कि वो आपको ऊंचा उठाए, no matter who decides to bring you down, it will not prevail in तो Jesus' फर्क name. नहीं पड़ता कौन आपको नीचा गिराना चाहे, कोई भी आपको नीचा नहीं कर पाएगा। Amen. I was telling you, one day I was just praying and the Lord told me, He said, son, there are many city leaders, they despise you. एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा
बेटा बहुत सारे शहर के अगुवे हैं जो तुम्हें तुच्छ देखते हैं, Because when we started, we were seen as a joke. Oh, ये तो पास्टर फटी जीन्स पहनता है. क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमें मजाक की तरह लिया गया that this pastor wears a torn jeans. ये यंग लोग आ रहे हैं यहाँ पे. ये जवान लोग हैं कुछ. And he said, they despise you, प्रभु ने but कहा, I'm going to lift you up in front of them. प्रभु ने कहा ये तुझे तुच्छ जानते हैं लेकिन मैं इन सब के सामने तुझे ऊंचा उठाने वाला हूँ. And when he lifts you up, और जब वो आपको ऊंचा there उठाता is है, no power of hell कोई ताकत नहीं है नरक की that can stop his plan. जो उसकी योजना को रोक सके. Amen. हमें I pray today, I want you to make a commitment मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आज ये ठान लें that you will honor कि आप आदर